Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that we were able to complete our electrostatics in the previous lecture, and today we're going to start with the next chapter of your class 12 syllabus, that is current electricity. Okay. Now before we start with this chapter, let's just quickly look at the syllabus. आपके करंट इलेक्ट्रिक सिलेबस क्या क्या है? Let's just quickly look at this. So the first topic which you're going to complete is current, electric current, then drift velocity, mobility, and the relationship with electric current, Ohm's law, electrical resistance, VI characteristics of ohmic and non-ohmic resistance, electrical energy and power, electrical resistivity and conductivity, series and parallel combination resistance, temperature dependence of the resistance. ठीक है? And finally we want to complete this chapter with the study of internal resistance, potential difference of EMF cell, combination of cells in series and parallel, Kirchhoff's laws and the application, Wilson bridge and meter bridge. ठीक है? So as you can see, the class 12 syllabus is quite wide even for this chapter. So what we're going to do is we're going to complete this chapter in 2 video lectures, and the first video lecture we're going to complete up to this much syllabus, and finally in the next lecture we're going to complete this much syllabus. Okay, so you have to be very careful with this thing. ठीक है, ये चैप्टर मैक्सिमम लोगों को लगता है उनको आता है, बट उनको चैप्टर ये ढंग से नहीं आता है. दिस चैप्टर इज क्वाइट अ ट्रिकी चैप्टर. आपको इस चैप्टर को ऐसे लाइटली नहीं लेना है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं. ठीक है, इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि चैप्टर पर क्या चीज़ है, क्या नहीं करना है. So इस चैप्टर को अपना लाइटली नहीं लेना. ठीक है, so let's just start with this chapter. The first and foremost thing about this chapter is let's just quickly look at the current. So before we start with electric current, कि electric current क्या होता है, आप किस तरह से currents को calculate करते हो, how to calculate resistance and the values of current, let's just briefly understand one more thing, that see that electric current is actually of two types. One is direct current and other is alternating current. Okay, इस चैप्टर में वी गोना डील विद विद डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी करंट. एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट द ऑल्टरनेटिव करंट जो अपने आप में एक डिफरेंट चैप्टर है, तो उसको हम तब स्टडी करेंगे. ठीक है, सो विद दिस नॉलेज इन योर माइंड कि आपको पता लग गया कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है, सिर्फ हमने डायरेक्ट करंट से डील करना है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस चैप्टर. ओके, सो as you all know what is current. Current की definition I hope आपको सबको पता है. Current is simply the flow of charges. The flow of charges is known as current. ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया करंट आपको दो तरह का होता है. वन इज ऑल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट. इन दिस चैप्टर हम किससे डील करने वाले हैं? हम डील करने वाले हैं सिर्फ डायरेक्ट करंट के साथ. ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट आर करंट कैरियर्स. ठीक है, अब देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है. करंट कैरियर्स आपको सुनने में इजी लगता है क्योंकि हर बच्चे को पता है कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं, बट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि ये चैप्टर से करंट कैरियर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है. इजी क्वेश्चन आया है कि पूछा था सेमीकंडक्टर्स में किस तरह के करंट कैरियर्स होते हैं. ठीक है, सो इस चैप्टर को इस टॉपिक को आप वैसे मत समझिएगा कि आपको आता है. इस टॉपिक को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. इट्स जस्ट क्विक आपको रीडिंग देनी है टॉपिक को अपनी रेफरेंस बुक से, एंड यू विल बी डन विद दिस टॉपिक. ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अबाउट द करंट कैरियर्स, हम जिसमें स्टडी करने वाले करंट कैरियर्स वही होते हैं. करंट कैरियर्स होते क्या? दीज आर द चार्ज एंटिटीज. ठीक है, whose flow in a definite direction constitutes the electric current. करंट कैरियर्स के बारे में आपको जो पहली चीज का ध्यान रखना है वो क्या है? द करंट कैरियर्स आर चार्ज एंटिटीज. कैसी एंटिटीज है? ये चार्ज एंटिटीज है. तो चार्ज एंटिटीज होती हैं जिनके फ्लो से, ठीक है, whose flow in a definite direction constitutes the electric current. ओके, क्या चीज इंपॉर्टेंट इसमें? दीज आर चार्ज एंटिटीज. कभी पेपर में कंफ्यूजन में मत आइएगा प्लीज कि इलेक्ट्रिक कैरियर्स क्या होते हैं. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट इलेक्ट्रिक कैरियर्स आर चार्ज एंटिटीज हु फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन. और ये डेफिनेट डायरेक्शन क्या होती है इसको हम आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा. तो चार्ज एंटिटीज जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, देन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स. सो इन केस ऑफ सॉलिड्स व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड्स, तो आपके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. सेकेंडली, अगर आप बात करते हो सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें, in semiconductors the charge carriers are negatively charged electrons and
positively charged holes. Okay, so remember one thing, this was your PYQ. Okay, this question was asked in one of the examinations, तो मुझे आइडिया नहीं अभी किसमें था, but question was asked. Okay, so remember these are negatively charged electrons and positively charged holes. ठीक है, next we move on to the in liquids. ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है लिक्विड्स में आपके चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं. इन लिक्विड्स वी हैव आयंस एज चार्ज कैरियर्स, और आयंस कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की. कौन से, कैटायंस एंड एनायंस. Okay, I'm repeating myself once again. This topic looks quite easy, but the question has been asked from this topic and paper में बच्चों को confusion हो जाता है, especially when they talk about semiconductors. Okay, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. And finally, one of the most important thing, one of the most important, rather I should say, one of the most important material through which the current electricity, study of the current electricity will be done, that is gases. ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, अगर आपसे कोई पूछे गैसेस के बारे में, तो आपको यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट गैसेस यूजुअली आर इंसुलेटर्स. मीनिंग दैट नो करंट विल पास थ्रू देम. यूजुअली क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, बट वी कैन क्रिएट सर्टेन सिचुएशंस. हम क्या करते हैं, हम कुछ सर्टेन सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं इन विच द गैसेस बिकम कंडक्टिंग. Remember one thing, let me repeat myself once again. Gases usually क्या होती हैं, insulators होती हैं, but we can create certain situations in which the gases becomes conducting. तो वो certain situations आपके पास क्या होती हैं, अब वो certain situations क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी जब आप क्या करते हो, high potential difference at low temperatures में apply करते हो. Then when we apply high potential difference at low pressures, okay, this is the first situation जिसमें आप गैसेस को कंडक्टिंग कर सकते हो. एंड फाइनली एक सिचुएशन और होती है, बाय एक्सपोजिंग द गैसेस टू एक्सरेज. बाय एक्सपोजिंग द गैसेस टू एक्सरेज. ठीक है, सो दीज आर द टू कंडीशंस आपसे पेपर में पूछा जा सकता है. अंडर व्हाट कंडीशंस गैसेस बिकम्स कंडक्टिंग. सो दो कंडीशन जहां पे आपकी गैसेस कंडक्टिंग हो जाती हैं, दोज आर हाई पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन वी अप्लाई हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर्स एंड बाय एक्सपोजिंग गैसेस टू एक्स-रेज. ठीक है, यही दो कंडीशन है. टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. Let's just look next topic, that is our electromotive force. ठीक है, जिसको हम पॉपुलर विच इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम EMF. ठीक है, EMF इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को स्टडी करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है. क्या चीज का ध्यान रखना है, you should always remember one thing, that the electric current flows through a closed circuit. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, बट नॉट इन अ ओपन सर्किट. ये बात हम सबको पता है. ठीक है, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इट फॉलोज अ डेफिनेट पाथ. ठीक है, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी. अब आपको यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी. इन सम क्वेश्चंस द एग्जामिनर कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन इन योर माइंड्स. आप देखिए इसको कंफ्यूजन किस तरह से क्रिएट होता है. ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा. पहली चीज रिमेंबर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स एट ऑल. आपको पहली चीज समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में द वर्ड फोर्स हैज बीन यूज्ड, बट रिमेंबर दिस थिंग दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स. इज नॉट अ फोर्स. आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स. अगर वो फोर्स नहीं है तो वो क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, बट रादर इट इज अ स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज अ स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स एट ऑल, बट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस.
ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझिए, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से, अब यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ही समझेंगे, ठीक है। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय एज आई हैव प्रीवियसली मेंशन कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं बेसिकली, तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको एक चीज कही कि इलेक्ट्रिक करंट flows in a definite path provided that path is closed मतलब सर्किट आपका कंप्लीट हो, ठीक है। ये बात होगी। एंड इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। और चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, चार्ज कैरियर्स आर योर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, चार्ज कैरियर्स आर योर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ठीक है। अब होता क्या है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो हमने स्टडी कर लिया कि फ्लो कब करेगा, इन अ क्लोज सर्किट, व्हेन देयर इज अ क्लोज सर्किट एंड वी हैव इन अ डेफिनेट पाथ में फॉलो करेगा, ठीक है। नाउ अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा, फॉर द फ्लो ऑफ करंट, अगर आपको करंट का फ्लो करवाना है, ठीक है, ठीक है, वो कब फ्लो करेगा, फॉर द फ्लो ऑफ करंट अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, आपका ईएमएफ। और ईएमएफ को एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ईएमएफ अपने आप में फोर्स नहीं होती, जस्ट अ फैंसी नेम, हमने उसको एक फैंसी सा नाम दे दिया कि भैया हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम एज्यूम करते हैं कि फोर्स की वजह से वो कंपेल कर रहा है चार्ज कैरियर उसको टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। फॉर द फ्लो ऑफ करंट अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो आपका क्या है, ईएमएफ है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, ठीक है। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, फॉर द फ्लो ऑफ करंट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स is required which compels the current carriers, which compels the current carriers। और करंट कैरियर्स आपके कौन हो सकते हैं, करंट कैरियर्स आपके कौन हो सकते हैं, करंट कैरियर्स कैन बी योर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, और होल्स और आयंस, ठीक है, टू मूव इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, टू मूव इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अब समझिए मैं क्या चीज कह रहा था आपको, हम बात कर रहे हैं इन अ डेफिनेट डायरेक्शन की, बट व्हाट इज दिस डेफिनेट डायरेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अ डेफिनेट डायरेक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो हम बात करते हैं किस चीज की बात करते हैं, कि फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू अ हायर पोटेंशियल एनर्जी, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इस बात को समझिए, हाउ इज दिस पॉसिबल, लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी पे कैसे वो फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट, हमने क्या कहा कि फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल, for the flow of current a source of external force is required which compels the charge carriers to move in a definite direction, and this definite direction being from lower potential energy to a higher potential energy। अब देखिए किस तरह से काम होता है, ठीक है। Here when we talk about the charge carriers, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, we are talking about electrons और ions की बात कर रहे हैं, ठीक है। So we are already aware that हम जो है किसी भी सेल को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, let us suppose this is the source of our EMF और दिस इज अ सोर्स ऑफ दैट फोर्स, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स योर पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, नाउ दिस रिप्रेजेंट्स योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर नेगेटिव टर्मिनल, ओके। हम बात कर रहे हैं जब फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं, हमें ये पता है कि फ्लो ऑफ करंट के लिए आपको चार्ज कैरियर चाहिए, एंड चार्ज कैरियर्स बीइंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे नेगेटिव टर्मिनल से, सो तो आपका फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ को मूव करते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू अ हायर पोटेंशियल एनर्जी। बट यहां पे आप इस बात को समझिए, बट
होता क्या है, इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं? द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन विच वी डू इज इन दिस वे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट ऐसा करते क्यों है? सो ये डाउट मैं आपका यही क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस दे आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टुवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बट स्टिल व्हेन वी when we draw a circuit diagram, we always take the direction of current from positive terminal to negative terminal। हम ऐसा क्यों करते हैं? See, the flow of current जो होता है ना, उसको हम पानी की तरह ट्रीट करते हैं, the way the water flows, ठीक है, and the water always flows from higher potential to lower potential, ठीक है, वाटर ऑलवेज फॉल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आप इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। सो इस सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए, इस सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन को सेट कर लिया। सो इन ऑर्डर, लेट मी रिपीट माय सेल्फ, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस सिमेट्री एज वाटर फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, so in order to maintain this symmetry in case of current electricity, we chose the direction of current from positive terminal to negative terminal, and this direction is known as your conventional direction, conventional direction। और इसी डायरेक्शन को आप एक नाम और दे दो, दैट इज योर ट्रांजिशनल डायरेक्शन, ट्रांजिशनल फ्लो भी आप इसको बोलते हो, ठीक है। यहां पे डायरेक्शन के बारे में आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप ट्रांजिएंट फ्लो भी बोलते हो, ठीक है। इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस शब्द को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दिस डायरेक्शन इज नोन एज योर कन्वेंशनल डायरेक्शन। पॉजिटिव टू नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूट्स योर conventional direction, but the actual direction of the flow of current is from negative terminal to the positive terminal। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहां तक आपके पास हो गया, ठीक है। सो अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स which is required to move the charge carriers, the current carriers or charge carriers is known as EMF, जिसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हो। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, EMF is not a force, remember this thing, EMF is not a force but a fancy name for a potential difference, it is a special case of your potential difference, ठीक है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे EMF की हम डेफिनेशन को भी समझते हैं, इसको एक चीज को और भी समझते हैं, ठीक है। अब देखिए EMF की डेफिनेशन को हम किस तरह से मेंशन करते हैं, हाउ वी डिफाइन EMF। एक तो सिंपल डेफिनेशन आपने याद कर ली कि दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ करंट और चार्ज कैरियर्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, दिस इज नोन एज EMF। इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, वन थिंग व्हिच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इज दैट EMF ऑफ सेल, दैट EMF ऑफ अ सेल is defined as the maximum potential difference between two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell or in a open circuit, Now let's just try and understand this definition क्या बोलता है, ठीक है। See, here what we are talking about, that EMF of a cell, that we are dealing with, EMF of a cell is defined as maximum potential difference। See, अब आपको ये पूछेंगे कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, why this definition is important for you, ठीक है। because when we are going to deal with the internal resistance, ध्यान रखिएगा इस बात को, this is very important। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? because when we are going to deal with internal resistance of the cell, another term will be introduced which will be potential difference। So you have to understand there is a difference between potential difference and electromotive force।
वो डिफरेंस क्या है? EMF ऑफ अ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. सो अगर पेपर में अगर आपको in your NEET examination, if the examiner has given you and he has used the term that the maximum potential difference of a cell or a battery is, let's just say, 5 volts, इसका मतलब ये है कि आपको V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू गिवन नहीं है, the value of EMF has been given to you. ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो क्या है, अगर आपको बोले द टर्म, इफ द एग्जामिनर हैज यूज्ड द टर्म ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इस बात का मतलब ये है कि आपको EMF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. एंड लेट्स जस्ट मूव बैक टू द डेफिनेशन. द EMF ऑफ सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट. रिमेंबर दिस थिंग, when no current. EMF को आप कैलकुलेट कब करते हो? जब सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करता. Let me repeat myself. The EMF is calculated when no current is flowing through a circuit, when no current is flowing from the cell or in an open circuit. और कोई भी करंट से सर्किट से करंट का फ्लो नहीं करेगा, सर्किट आपका ओपन होगा. तो EMF is calculated for open circuits. ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है. और अगर सर्किट आपका ओपन है, दैट मींस नो करंट इज फ्लोइंग टू द सर्किट. और अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट मींस द पोटेंशियल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज EMF, दैट इज योर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इतना आई होप आपको याद हो चुका होगा. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नॉट नेक्स्ट टॉपिक, बट लेट्स जस्ट लर्न अ फॉर्मूला हियर. ओके, अब EMF जो है इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगा. EMF कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, अनदर डेफिनेशन इसकी क्या है, लेट्स जस्ट राइट हियर अनदर डेफिनेशन. इसकी जो अनदर डेफिनेशन है वो आपके लिए क्या है? इट इज आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड. इट इज आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड टू मूव a unit positive charge, a unit positive charge once around the complete circuit, and is given as किस तरह से दिया जाता है वो? And is given as E is equal to integral of E vector dot dl vector. ओके, अब आपको यहां समझना पड़ेगा फिर से, इट इज नथिंग बट द एनर्जी सप्लाइड. अब एनर्जी कहां से आई? बिकॉज EMF को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड अ कंप्लीट, अराउंड क्या है, मतलब सर्किट को कंप्लीट करो, घुमा के ला रहे हो, सर्किट इज योर कंप्लीट. तो उसके लिए जो इतना काम करोगे, जितना वर्क डन आप करोगे, दैट इज नोन एज योर EMF. एंड दिस इज द relationship which you should remember, and this relationship is very important because this relationship help you solve many questions. okay, आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, व्हाट इज E. रिमेंबर, E represents your electric field. E represents your electric field, while DL, this DL represents your small path segment vector. Small path segment vector. All right. ठीक है, now let's just move to the next topic. That is the difference between electromotive force and potential difference. ठीक है, now let me write here that this is a very important topic. तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा. ओके, इंपॉर्टेंट. ओके, अब ये डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दिस डिफरेंस, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो लेट्स जस्ट से what is the difference we are talking about? We're talking about the difference between electromotive force and potential difference. Okay, so let's just go with it. Okay, so पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि EMF के बारे में जो पहली चीज हमने पढ़ी, that was it is the maximum potential difference between the two
between the in the circuit between the electrodes of the cell and no current is flowing through it. ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, it is related to the source of current. Number one, it is related to source of current. सोर्स ऑफ करंट. अब सोर्स ऑफ करंट क्या होगा? बैटरी हो सकती है, सेल हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो इट इज रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ करंट. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस. इट इज रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ करंट, नंबर वन. एंड सेकेंडली व्हेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे देन वी टॉक अबाउट द 2 पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट. इट इज रिलेटेड टू 2 पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड सर्किट. और ये 2 पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं. बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, रिलेटेड टू एनी 2 पॉइंट्स, टू एनी 2 पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट. ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई. लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट चीज जो आपको इसमें ध्यान रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट ईएमएफ. अब हमने क्या कहा कि ईएमएफ इज रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ करंट, बैटरी से रिलेटेड है. ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया, इट इज रिलेटेड टू एज टू एनी 2 पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट. ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा. इट इज द कॉज ऑफ potential difference. It is the cause of potential difference between 2 points in a circuit. So in examination, in the assertion and reason question, this point can be directly given to you. He will say the assertion क्या बोलेगा? The potential difference is related to the 2 points in a closed circuit. ठीक है, मगर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, इट इज द कॉज ऑफ द, उसका कॉज क्या है? व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस अकर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स. उसका कॉज है ड्यू ईएमएफ. तो रिमेंबर, इट इज द कॉज ऑफ, इट इज नथिंग बट द कॉज. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द इफेक्ट. It is the effect. Okay, remember this thing. As I have already mentioned, it is nothing but the work done. It is the amount of the EMF is nothing but the amount of work done in moving a unit positive charge. A unit positive charge around a complete circuit. हम जब पूरे चार्ज को मूव कर रहे हैं अराउंड अ कंप्लीट सर्किट, देन दैट इज योर ईएमएफ. एंड पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग बट वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी. अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गया आपके लिए. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस? इसमें क्या है देखिए, इट इज इक्वल टू, आपको समझना पड़ेगा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ, इट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, potential difference across all components of a closed circuit including the cell. Now remember one thing, why this point is so important. हमने इस point को discuss किया, and let me tell you one thing, why this point is important. ये point आपके लिए important क्यों है? This point is important for you because this point will lead the foundation. This point will lay the foundation for your Kirchhoff's law. हम Kirchhoff's law को जब हम पढ़ेंगे, then you must remember this thing, that this point will lay the foundation for the study of Kirchhoff's law. Because हम Kirchhoff's law में EMF निकालते हैं, when we talk about the potentials in Kirchhoff's law, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि पूरी लूप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. एंड जब हम पूरे की पूरी लूप को कंसिडर करते हैं, then we talk about the EMF. तो आपको समझना पड़ेगा, EMF is equal to the sum of the potential difference across all components. Across all components. All components is a very important term here. ठीक है,
Okay, so if we relate this point to the potential difference, so this is nothing but potential difference is nothing but again remember the thing, different components will have different potential difference between them. ठीक है, let me again repeat this point, let me just explain this point once again to you. देखिए, let's just say this is the circuit which has been given to you. ठीक है, here we have a resistance, here we have a let's just say a lamp, here we have a capacitor, and here we have a battery. This is positive and this is negative. So when we talk about EMF, जब हम EMF की बात करेंगे, we will calculate the potential difference across here V, V and V. V1, V2, V3 and V4. So EMF will be equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. ठीक है, ये बात क्लियर होगी? ठीक है, तो अगर ये बातें आपके पास क्लियर होगी तो दैट मींस EMF होगा यहाँ पे इतना. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी this much. This will be your potential difference. This is your potential difference V. अगर हम यहाँ पे voltmeter calculate, the potential difference nothing but the potential difference across any two points. ठीक है, and finally one of the most important points of the difference between the EMF and potential difference, that is, remember, it is independent. It is independent of external resistance. It is independent of external resistance. Please remember this thing. It is independent. क्या है ये? इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल. यानी कि दो क्वांटिटीज के इंडिपेंडेंट है. द वन क्वांटिटी विच इज ऑफ विच इट इज इंडिपेंडेंट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड सेकेंडली द करंट. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड करंट, इन दोनों क्वांटिटीज के ये इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, इसके बाद अगर हम स्टडी करते हैं, इसी चीज में आपको समझना पड़ेगा. और द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स and current flowing through them. ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले ही बात रिपीट करता हूँ. ऑल्दो दीज डिफरेंसेस आपको इनसिग्निफिकेंट लगेंगे, यू माइट फील कि इनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बट लेट मी रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दे विल लीड द फाउंडेशन, दे विल ले द फाउंडेशन फॉर योर कर्शॉफ्स लॉ. आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. प्लस दीज पॉइंट्स हेल्प यू इन योर assertion and reason questions. These points will help you in simple MCQs, and just in case if multiple selective questions are there, so these points will help you to solve all those questions. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. You have to remember these points. These are very crucial and very important points. I cannot lay to you have to. I cannot lay to the emphasis of these points. आपको इस point की मैं आपको my words cannot explain how important these points are. Okay, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को कंटिन्यू करना पड़ेगा. ठीक है, आपको याद करने ही पड़ेंगे. You have to do that. Okay, now let's just move on to the next topic, that is your electric current. ठीक है, let's just look at the next point, that is electric current. Electric current. Okay, so when we talk about electric current, we simply know that electric current is nothing but the flow of charge. ठीक है, so electric current, it is denoted by symbol I and it is equal to Q over T, that is charge over time. It is equal to charge over time. ठीक है ना. अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स जस्ट से when we talk about this thing, okay, when we talk about the current as I is equal to Q by T, although आपको इतना डिफरेंस मेंटेन नहीं करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है that it is my duty कि मैं आपको एक चीज को यहाँ पे क्लियर कर दूं. ठीक है, तो see I is equal to Q by T. I is equal to Q by T हमें पता है. ठीक है, but remember this thing, this relationship is valid when the current is steady. When current is steady, this relationship is valid when the current is steady.
ओके, बट ऑफन मोर ऑफन आपके पास जो केसेस आते हैं द करंट इज यूजुअली नॉट स्टडी, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो देन आप क्या करते हो, आप इस डेफिनेशन देन यू मॉडिफाई दिस डेफिनेशन बिकॉज दिस डेफिनेशन इज यूज्ड व्हेन द करंट इज स्टडी। सो यू माइट हैव looked at the questions and you might have found some questions where the statement says that a steady current is flowing through a circuit. Why the term steady current is used in the circuit in that question? Because अगर वो आपको वर्ड यूज कर रहा है द करंट इज स्टेडी इन द सर्किट, इसका मतलब आप I इज इक्वल टू क्यू बाई टी को वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द रीजन वाई हमने क्या किया फॉर जर्नलाइज रिजल्ट्स के लिए, ठीक है, टू गेट अ मोर जनरल रिजल्ट, ठीक है, फॉर मोर जनरल result, ठीक है, when the current is not steady we define current as IT is equal to limit as delta t tends to 0 delta q over delta t which is equal to dq over dt, ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये सब चीजें तो पता ही है, ठीक है ना। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है, ठीक है, इसकी यूनिट्स आपको पता है, इसका हाउ वी डिफाइन 1 कूलम और 1 एम्पियर, ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जिसका आपको ध्यान रखना है दैट इज दैट द करंट कैरिंग wire does not have a net electric charge, okay, this is very important, this is very important। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है which of the following statements are correct and one of the statement might be the current carrying wire does not have a net charge, या आपको स्टेटमेंट बोल सकता है that the current carrying wire do possess a charge, ठीक है। सो आपको एक बात समझनी है that the current carrying wire does not carry a charge। कौन सी स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, that a current carrying wire does not have a net electric charge, बट आपके पास क्वेश्चन पूछता है आता है वो है why, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, why that the current carrying wire does not have a net electric charge, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, ठीक है। let's just say we talk about a wire, let's just say we take a wire, let's just try and understand how this happens, let's just say this is the wire which has been given to us, ठीक है। so at any moment the number of electrons and protons inside this wire will be equal, ठीक है, वो बराबर होंगे, दैट्स वाई उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये तब है जब उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस when the current in the when the electrons starts to flow, or rather say we should say that when the current starts to flow in this wire, let's just say the direction of the current of the flow is the flow of current is like this, ठीक है। so now what we are dealing with, now what we are trying to study is why the current carrying wire does not have a net electric charge। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज व्हेन वी स्विच ऑन द करंट, जब हम किसी वायर से करंट को पास करते हैं देन द नंबर ऑफ करंट electrons that are entering through this end are equal to the number of electrons that are leaving from this end। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आपको उसमें एंटर कर रहे हैं पर सेकंड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लीविंग थ्रू द अदर एंड, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट इसकी वजह से द नेट चार्ज ओवर अ वायर कैरिंग अ करंट इज इक्वल टू 0। इसकी वजह से द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट अ करंट कैरिंग वायर कैरीज इज इक्वल टू 0। लेट मी रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन कि आपकी जो करंट कैरिंग वायर है उसमें चार्ज क्यों नहीं होता, उसमें चार्ज इसलिए नहीं होता बिकॉज एज सुन एज द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द वायर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग फ्रॉम वन एंड, लेट जस्ट से फ्रॉम ए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए से एंटर कर रहे हैं पर सेकंड उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके दूसरे एंड से बाहर निकल जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट बी पर सेकंड। तो इसकी वजह से क्या है, आप इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, जितने एंटर कर रहे हैं उतने बाहर जा रहे हैं, तो नेट कितना हो जाएगा 0। इसी वजह से आपको ये बात समझनी पड़ेगी, दिस इज द रीजन व्हाई कि जो करंट कैरिंग वायर है उस पर करंट नहीं होता, उस पर चार्जेस नहीं होते, ओके।
ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को तो डिसाइड कर लिया था, हमने उसको पढ़ भी लिया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज यूजुअली टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल सो एज टू मेंटेन द सिमेट्री विद द फ्लो ऑफ वाटर के साथ, कि हम समझ पाए कि बिकॉज हायर फ्रॉम बिकॉज वी नो दैट वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, बट एक्चुअली नाउ इनसाइड अ वायर, करंट कैरिंग वायर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, बट हम क्या लेके चलते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या लेके चलते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होती है, वी टेक द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। वो क्यों लेते हैं, हमने कन्वेंशन क्यों सेट किया, बिकॉज हमने एक सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हमने उस सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो, वी टुक द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लेट्स जस्ट दिस इज योर कंडक्टर, ओके, एंड लेट्स जस्ट से दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। सो जो आपका कन्वेंशनल करंट होता है, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, the conventional current, let's say this is positive and this is negative, your conventional current flows from this direction, flows across this direction, this is your conventional current, but जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट इज along this direction, this is your electronic current. So remember, direction of conventional current is opposite to the direction of conventional current. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Now let's just move on to the next topic, that is why current is a scalar quantity. ठीक है, now let's just discuss current is a scalar quantity. ठीक है, this is also important and you must always remember this thing कि करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी क्यों है, you should always remember this thing, current is a scalar quantity. Now see, जब हमने वेक्टर्स पढ़े थे, then we defined what are the scalar quantities and what are vector quantities, and we know that vector quantities are those quantities which have a magnitude along with the direction, and the scalar quantities are those quantities which only have the magnitude. ठीक है, ये बात हमें पता है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, एंड द वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which has magnitude as well as direction. Current is a very special case. Current is a very special case. Why the current is such a special case? Because current has both magnitude and direction. Magnitude and direction. ठीक है, but still it is a scalar quantity. ओके अब प्रॉब्लम ये है, मैक्सिमम बच्चों को ये पता है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, एंड दे नो द रीजन एज वेल, कि वो ये बात बोलते हैं बिकॉज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन डज नॉट अप्लाई टू द करंट स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन डज नॉट अप्लाई टू करंट। अब बात ये है, सी इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, द एग्जामिनर मे आस्क यू, ठीक है, एग्जामिनर मे आस्क यू दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ही विल गिव यू 4 ऑप्शंस, ठीक है, हो सकता है उन चारों ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन ये ना हो कि बिकॉज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन डज नॉट अप्लाई टू द करंट, देयर आर चांसेस दैट दिस स्टेटमेंट विल बी एब्सेंट in those 4 options. Let me repeat myself once again. In an examination, the examiner, in the unit examination, the examiner may ask that the current is a scalar quantity because, and he will give you 4 options, and in those 4 options there are chances that this statement, the laws of vector addition does not apply to this current, will be absent, may be absent, sorry, this statement may be absent. तब आप क्या करोगे, how will you find the answer for that question? आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे, ठीक है, और ये प्रॉब्लम किन बच्चों को फेस होगी, ये प्रॉब्लम उन बच्चों को फेस होगी कि what does the laws of vector addition mean, what does the term, it is a, what does the term the laws of vector addition does not apply to the current means, इस बात का मतलब क्या है,
इस बात का मतलब ये है, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, दिस मीन्स दैट द करंट, ठीक है, that the current, or rather I should say that the flow of current, or rather let's just say, because the total current in a circuit is independent of the angle between the wires that are carrying the current. ये मतलब है इस बात का. हो सकता है पेपर में there are chances that the statement like the laws of acceleration does not apply to the current and that's why the scalar quantity might be absent. ठीक है, this kind of statement might be absent, so the examiner can twist the statement. वो आपको इस तरह से घुमा के यही चीज पूछेगा and he may ask you कि the total current in a circuit is independent of the angle, so this statement will be correct. ठीक है, so that is independent of the angle. अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है this means that, ठीक है, let's just say this is the amount of current that is coming from, let's just say this is I1, this is I2 and this is I3. okay, ये चीज है आपके पास, ठीक है. So here always remember that I1 will be equal to I2 plus I3, ठीक है. And to confuse you, in order to confuse you, examiner आपको क्या करेगा? In order for to confuse you, the examiner may give you something like this. okay, what he will do, that he will give you three axes. okay, he will give you three axes. Let's just say this is your x-axis, this is your y-axis and this is your z-axis. So in order to confuse you, what he will say, that a current, so what he will say, that a wire carrying a current, ठीक है, is placed along y-axis, okay. So let's just say this is the wire which, ठीक है, which is placed along the y-axis, ठीक है, and suddenly the wire bends at an angle of 90 degree. The wire bends at an angle of 90 degree. ठीक है, देखिए आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट करना है उसके दिमाग में. सो लेट्स जस्ट से दिस इज योर I1 एंड वो आपको ये बोलेगा कि सडनली द वायर बेंड्स एट 90 डिग्री एंड अ करंट I2 स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू दैट वायर. ठीक है, क्या कहना चाहता है कि ये कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या बोलेगा कि आपके पास एक वायर है, वो उसको आपने वो दैट इज प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस, आपने उसको y एक्सिस के क्रॉस प्लेस किया है एंड सडनली लेट्स जस्ट से एट y is equal to y naught, it bends at an angle of 90 degree and a current I2 starts to flow from this wire. तो आपसे ये पूछेगा what will be the relationship between I1 and I2. तो आपसे क्या पूछेगा, what will be the relationship between I1 and I2, since and what he has done, he has involved an angle. वो आप भी यहाँ पे एक एंगल इन्वॉल्व कर दिया है. लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे. वो क्या करेंगे, आउट ऑफ द ऑप्शन लाइक जैसे I1 विल बी ग्रेटर देन I2, I1 इज इक्वल टू I2, I2 इज लेस देन I1, ठीक है, I2 इज ग्रेटर देन I1 सॉरी, एंड लेट जैसे वन ऑप्शन इज कान से. ठीक है, सो देयर आर चांसेस कि बच्चे इस ऑप्शन को टिक ना करें. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने एंगल बोल दिया. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि the amount of current flowing through a wire is independent of the angles. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, so examiner can confuse you, he will try and confuse you by giving some stupid angles between them. और आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि करंट की वैल्यू एंगल्स पर डिपेंड नहीं करती है, it just simply adds or subtract. okay, ये चीज होगी आपके पास. ठीक है, now let us move to the next topic. ठीक है, that is the electric currents in a conductors. Here we will discuss about the drift velocity. हम discuss करेंगे about mobility, relationship between उनके बीच में क्या relation होता है. Then we'll study about the resistance, their dependence. और फिर ये जो आज का टारगेट है वो आज का हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है,
सो रिमेंबर, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर. नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर. ओके, सो यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस टॉपिक बिकॉज सम पॉइंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बच्चों को ऐसा लगता है उनको ये चैप्टर आता है. दे ऑलवेज थिंक दैट दे नो दिस चैप्टर, दे हैव अ कंप्लीट कमांड ओवर दिस चैप्टर. There is no doubt कि वो हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लें, but they will face some problems when some basic questions from this theory part are will be asked. Okay, but let me repeat myself. People think that they know this chapter, they have a complete command over this chapter, but let me tell you one thing, ठीक है, that they will face some kind of a problem just in case the examiner decides to ask some kind of conceptual questions from this chapter. ठीक है, there is a probability that many of you will be able to solve the numericals from this chapter. ठीक है, because numericals जो है डायरेक्ट आते हैं. But the moment he will ask you some kind of conceptual question, the most of you will like you won't be able to answer those questions because you don't have that much command over your theory. इसलिए मैं आपको जहाँ जो टॉपिक्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये these topics are important, you should be very careful. You should listen to me. ठीक है, और you have to study all those topics. Okay, theory for some portions is very important and this is one such topic. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. जिन चैप्टर्स की थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको वो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दिस थिंग दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर्स. ओके, रिमेंबर वन थिंग. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दैट इन कंडक्टर्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स are so closely packed that the valence electrons are no longer attached firmly. Let me write this thing once again. Are no longer attached firmly to individual atoms. Okay, some of these are free to move within bulk material like molecules in a gas. Okay, अब देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा था कि there are some points which you won't be able to understand. Okay, अगर आप ये चीज पढ़ के नहीं जाओगे, if the question will be asked from this topic and let's just say if he asks you if the given statement is true or false, if he can ask you which of the following statements are correct, ठीक है, आप वो नहीं कर पाओगे अगर आपको बेसिक नॉलेज ऑफ द थ्योरीज, यू डोंट हैव दैट बेसिक नॉलेज ऑफ थ्योरी. क्यों? अब देखिए, इस बात को समझिए, हम क्या कहना चाहता हूँ आपको. देखिए, इन दिस स्टेटमेंट, ठीक है, it is being said that in conductors atoms and molecules are so closely packed. Remember this thing, the atoms and molecules are so closely packed that the valence electrons are no longer attached. मतलब आपको समझना पड़ेगा, एटम्स और मॉलिक्यूल, अगर आप कंडक्टर्स की बात कर रहे हो, इन केस ऑफ कंडक्टर्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने इतने क्लोज हैं, those are so close to each other that the valence electrons are no longer attached firmly to individual atoms, and some of they are free to move like molecules in a gas. ठीक है, अब ये थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट है, इसमें हम जाएंगे नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में चल पड़ता है. ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे. मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट समझाना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली. अब मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगा आपको ताकि ये पॉइंट समझ आए. सी,
let's just say we know that in atoms and molecules, in a case of solid or rather in a case of a conductor, those are closely packed. Let's just say this is a conductor in which this is how atoms are being arranged. Okay, since these are very close to each other, so let's say this is how these atoms are arranged. Please इसमें circles के diameter पे focus ना करें, radius पे focus ना करें, just try and understand what I'm trying to say. Okay, so this is how the atoms are arranged in a, let's just say this is how the atoms are arranged in a conductor. This is the conductor in which this is how the atoms are being arranged. Okay, अब ये क्या कह रहा है कि ये इतनी closely, इतने tightly packed है, ठीक है, कि let's just say we try and pick this. हम क्या करते हैं, यहाँ से इस एटम को उठाते हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट पिक दिस एटम. हम ये कह रहे हैं, हमें ये पता है कि इसके एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. जैसे दिस इज द न्यूक्लियस, सो इट विल बी हैविंग like this will be the arrangement of the electrons around this. In this shells the electrons will be arranged, ठीक है. Let's just say this is the valence electron. Let's just say here we have a valence electron, ठीक है. अब होगा क्या, ये जो एटम है, this is so tightly packed, this atom is so closely packed with another atom. Let's just say with this atom is so closely packed with this atom, ठीक है. अगर हम इस एटम को उठाएं तो होगा क्या कि इतनी क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, कि दैट दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिमेन फर्मली अटैच्ड टू दिस एटम्स न्यूक्लियस. वो फर्मली इसका अटैच नहीं रहेगा. इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ट्राई एंड मूव अक्रॉस द bulk material. Okay, और वो they lose the, what do we call that, they are no longer attached firmly to the individual atoms. उनकी जो strength है, वो जिस तरह से अपने individual atoms से जुड़े हैं, वो उसके जुड़े नहीं रहते. वो they try and flow like the molecules of a gas in a air. वो उस तरह से flow करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. तो remember this thing, in the final examination, the NEET examination, the examiner can ask you if the following statement is true or false, and he will say that in a conductor or atom or a molecule, in a conductors, that the atoms or molecules are so closely packed that the valence electrons no longer remains firmly attached to the individual atoms. So क्या ये statement सही है या गलत है? So this statement is true, ठीक है. और यही क्वेश्चन आपसे assertion and reason में भी पूछा जा सकता है कि he will give you assertion like the sum of the molecules, sum of the valence electrons in a solid or in a conductor, they move freely like the molecules of molecules in a gas. तो ये is this statement is true or false? पहले आपको ये देखना पड़ेगा assertion reason. So this assertion is true, and what is the reason for that? The reason for this is कि जो atoms हैं, these are so closely packed to each other कि some of the valence electrons remains no longer firmly attached to the individual atoms. तो ये इसका reason है, ठीक है. So remember this thing. I hope ये point आपको समझ में आ गया होगा, and this is a very important point, ठीक है. अब ये बात आपके पास हो गई, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट आपको समझने वाले हैं, ठीक है. आप समझिए, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. Now again, please listen to this very carefully. Now let's just say we have this conductor. Okay, हमने उस कंडक्टर को उठाया और हमने उसको एक जगह पे रख दिया, ठीक है. In a region where there is no electric field, हमने उसको उस region में रख दिया. So when there is no electric field, remember, when this is the case, then your free electrons have only your thermal मोशन. वो सिर्फ अपनी हीट एनर्जी की वजह से, जो उसमें एनर्जी है, उस वजह से क्या करते हैं, उसी वजह से वो घूमना शुरू करते हैं. दे आर फ्री टू मूव ड्यू टू देयर थर्मल मोशन, ठीक है. थर्मल मोशन की वजह से दे हैव देयर थर्मल मोशन होती है. वो हीट एनर्जी की वजह से जो उनके पास एनर्जी है, दे ओनली यूज दैट एनर्जी टू मूव, ठीक है. नाउ व्हेन दे मूव, व्हाट हैपेंस? व्हेन दे मूव दे कोलाइड, ठीक है. These electrons, they collide with fixed ions in material and emerge with same speed. कोलिशन तो तब भी हो रहे हैं, ठीक है. बट रिमेंबर
one of the most crucial point here, okay, that is that the direction of the velocity, the direction of velocities after collision is random. अब वो रैंडम है, इस वजह से क्या हुआ, सिंस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज रैंडम, द एवरेज थर्मल रैंडम वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब v एवरेज इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, नो करंट इन कंडक्टर. So let me try to explain this thing to you once more. Okay, अब देखिए आपसे पेपर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, when a conductor is placed in a region where there is no electric field, ठीक है, then why there is no current despite having thermal motion. ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि उसके पास थर्मल मोशन होते हुए भी, जहां पे कोलिशंस भी हो रहे हैं, जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके कोलाइड कर रहा है किसी भी आयन के साथ, then why despite having collisions electric current is not present in a conductor when it is placed in a region where there is no electric field. आपसे पूछ सकता है, तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज वी नो दैट द कोलिशंस आर हैपनिंग, हमें पता है कोलिशंस हो रहे हैं, बट ठीक है, बट कोलिशन के बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे हैं वहां से आफ्टर कोलिशन, जब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, वो द चेंज इन डायरेक्शन इज सो रैंडम, the change in direction is so random that when we calculate the average velocity of every electron present in that conductor, that comes out to be 0. इसलिए ये this is the reason why when we place a conductor in a region where there is no electric field, the conductor does not have electric current despite having collisions. ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, कोलिशंस होने के बावजूद वहां पे क्या है, वहां पे आपके पास करंट नहीं होता, बिकॉज द मोमेंट दे कोलाइड, ठीक है, एंड दे मूव आउट आफ्टर द कोलिशन, जब वो वहां से बाहर आते हैं, देयर डायरेक्शन इज सो रैंडम कि जब हम उसके एवरेज लेते हैं, दैट वी वांट टू टेक द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज, इट कम्स आउट टू बी 0. एंड इस वजह से क्या होता है कि देयर इज no current in a conductor despite having thermal motions and collisions. ठीक है, but what happens when the electric field is applied? But what happens when electric field is applied? When electric field is applied, ठीक है, अब आपको समझिए, when the electric field is applied, तब होता क्या है, when electric field is applied, ठीक है, तब होता क्या है कि that random motion, जो random motion थी इलेक्ट्रॉन्स की, that becomes systematic, ठीक है, and they move along the direction of electric field. And when they move along the direction of the electric field, तो होता क्या है जी, जो इसको आप बोलते हो ट्रांजिएंट करंट, ठीक है, अब क्योंकि हम ट्रांजिएंट करंट को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, सो उसको भी छोड़ दीजिए, थोड़ा देख ले. सो अब होता क्या है कि when we apply the electric field, the electrons का flow जो होता है, the flow of electrons becomes systematic. They try and move from higher potential to the lower potential. अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की फॉर्म में, they try to move from higher potential to a lower potential. So as a result, the average velocity does not become 0. क्योंकि अब उनका फ्लो सिस्टमैटिक हो गया है, एवरेज वेलोसिटी अब 0 नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई योर कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिक करंट व्हेन वी प्लेस देम इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब इसको फिर से समझते हैं. जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जो पहले रैंडमली फ्लो कर रहे थे ड्यू टू थर्मल मोशन, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिकम सिस्टमैटिक, एंड एज सून एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम सिस्टमैटिक, द एवरेज वेलोसिटी व्हिच वाज अर्लियर 0, व्हिच वाज अर्लियर कमिंग आउट टू बी 0, नो लॉन्गर रिमेन 0. अब वो 0 नहीं रहती. इसलिए क्या होता है, अब आपको कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू देखने को मिल जाती है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर इन अ रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट्स. ठीक है, उसमें से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर. ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं, इसको मैंने बता दिया, द करंट फ्लोज. ठीक है, एंड व्हाई द करंट फ्लोज, बिकॉज वी एवरेज इन दिस केस इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, और वी एवरेज क्यों नहीं 0 नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बिकम सिस्टमैटिक. और सिस्टमैटिक किस तरह से होता है, दैट दे फ्लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोना डील विद इज drift velocity. Okay, now remember
when we talk about drift velocity, okay, questions has been asked and questions will be asked. ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेशन हैज आल्सो बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से आए हैं. ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. ठीक है, यहाँ से रिमेंबर वन थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ. ठीक है, व्हेन वी हैव अ सिंपल कंडक्टर एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, आपके पास एक सिंपल कंडक्टर जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में नहीं रखा है, और रादर वी शुड से इफ वी हैव एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड नो पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स. ओके, ड्यू टू थर्मल मोशन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट रैंडम. रैंडम मोशन होने की वजह से द एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो एंड एज अ रिजल्ट देयर इज नो करंट इन द सर्किट. ठीक है, सो अब आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड v एवरेज ड्यू टू थर्मल मोशन, ठीक है, नॉट एवरेज, दैट ड्यू टू थर्मल मोशन is of order 10 raised to power 5 meters per second. Other instead of v average कि आप confusion में ना रहे, हम ये समझ लेते हैं कि the velocity of electrons, that the velocity of electrons due to thermal motion is of order 10 raised to power 5 meters per second and this is your PYQ. वहाँ पे आपको directly पूछा गया था. This question has been asked directly in your one of your examination. वहाँ पे आपसे directly पूछा गया था that the velocity of electrons in a thermal motion is equal to is of order 10 raised to power 6, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5 और 10 raised to power 8. तो उसका आंसर था 10 raised to power 5. ठीक है, और इसके बाद भी हम समझ लेते हैं कि द मोमेंट वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस, अगेन व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, तो होता है क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम सिस्टमैटिक, दे ट्राई टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. सो इस वजह से क्या होता है, सिंस द फ्लो बिकम्स सिस्टमैटिक द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स टू अपीयर इन द कंडक्टर. तो वो कंडक्टर के उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें जो आपका करंट का फ्लो होता है इस वजह से होता है. ठीक है, अब देखिए, व्हेन electric field is applied or other one applied or potential difference is applied, potential difference is applied. Okay, see when this happens, ठीक है, the flow of electrons becomes systematic, they try to flow the direction in which the electric fields try to flow. But होता क्या है, although the flow of current becomes systematic but still they collide with these other atoms or ions in the system. ठीक है, उनके बीच में क्या हो गया, collisions हो गए, and due to the collision उनका path जो होता है that no longer remains straight but rather curved, their path becomes curved. But as I have already mentioned, the average velocity जब उसकी calculate करते हैं that is no longer equal to zero and that's the reason why we have this electric current. ठीक है, so remember when we apply the electric field potential difference, each electron follows a curved path. And why they follow curved path? Because of the collisions. ठीक है, वो although they have followed a straight path, but होता क्या है, बीच में atoms and molecules जो होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं and they collide and as a result the path becomes curved. तो इसको आपको ध्यान रखना है, they no longer follow a straight path but rather they follow a curved path. They follow a curved path. ठीक है, so ये होता है आपका कर्व्ड पाथ और इसके बेसिस पे वी डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वी डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons gets drifted towards the conductor under the influence of external applied field. अंडर द इन्फ्लुएंस, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि हमने क्या किया, द मोमेंट वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, the flow of electrons becomes systematic but they do suffer some collisions and as a result of the collisions क्या होता है, उनका path no longer remains straight but rather it becomes curved.
ठीक है. And when we take the average of those velocities with which the electrons are flowing inside a current, when we place that conductor in presence of an electric field, उसकी वजह से जब हम उसकी एवरेज लेते हैं, that average is no longer equal to zero. That average is no longer is equal to zero. अब क्योंकि वो एवरेज no longer equal to zero है, तो एवरेज की जो वैल्यू आती है, that average is known as your drift velocity. That average is known as your drift velocity, and the drift velocity is of order, 10 raised to power 4, 10 raised to power minus 4 meters per second for an electron. Please remember this thing, and this question has already been asked in one of your previous year questions. So ये आपका PYQ है. This is your PYQ. इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो बस अब जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो व्हेन वी सॉल्व दिस डेरिवेशन वी गेट द रिलेशनशिप फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज वी कैन कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज vd is equal to minus ee tau over m. vd vector, because velocity is a vector quantity, so remember we get the relationship of vd as drift velocity is equal to minus ee tau over m, where e is charge, tau is your relaxation time, m is mass, and capital E is your electric field. ठीक है. Now remember, what is this tau? Tau is your relaxation time, and in layman's term, relaxation time in layman's term can be defined as the duration between two collisions. ठीक है. It is your relaxation time is nothing but the duration between two collisions. इसको हम define कर सकते हैं as average time that has elapsed since electron suffered its last collision. ठीक है. since it is an average time, since this is an average time, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau n over n. ठीक है. Now एक चीज का आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है, what does this negative sign represents? Remember, this negative sign जो है, this negative sign represents that VD is in opposite direction to E vector. पेपर में पूछा जा सकता है that drift velocity and the electric field are in the same direction. नहीं, the drift velocity and the electric field are in opposite direction. Okay, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है. And there's one more thing which you should remember, that average relaxation time. There's also one more thing which you should remember, that is the average relaxation time. That is average relaxation time is equal to mean free path divided by drift speed, okay, of an electron. ठीक है. This is also very important relations for your numericals. Okay, so इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. I hope आपको अभी तक इतना समझ में आ चुका होगा. ठीक है. Now let's just move to the next topic, that is your mobility. Okay, now how we define mobility? See, mobility is usually represented by a symbol mu. ठीक है. And it is usually defined as the magnitude of drift velocity is usually defined as Vd, drift velocity divided by electric field. It is defined as the drift velocity divided by electric field, and this comes out to be q tau over m. Remember this thing, ठीक है. This relation is very important. Vd is equal to q tau over m, because this is your PYQ, और यही चीज आप यूज करोगे इन सेमीकंडक्टर्स के जब चैप्टर्स को हम स्टडी करेंगे तो वहां पे हम समझेंगे. ठीक है. नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज मोबिलिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इज डिफाइंड एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ ओवर एम. ठीक है. टाउ ई ओवर एम.
and mu h is defined as QH tau E over m. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अगेन यहां पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आपके लिए चीज यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि दैट मोबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड whole, rather I should say whole, for a negative charge carrier as well as positive charge carrier, and positive charge carrier is your whole. Okay, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। Although their drift velocities are opposite to each other, please remember this point। मतलब कि अगर आप बात करते हैं मोबिलिटी की, मोबिलिटी इज सेम फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फॉर होल, बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इतनी सी बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगेन हम इसमें वी आर नॉट गोइंग टू द डेरिवेशन पार्ट, हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद करेंगे, दैट करंट आई इज इक्वल टू प्लीज जस्ट अ मिनट, दैट करंट आई इज इक्वल टू NaEVD. Okay, where symbols have their usual meanings, where N represents the number of electrons or protons, and the number of electrons or holes, A represents the area, E is the charge, and V is your drift velocity। ये चीज आपको पता है। ठीक है, we can modify this relationship bit much, हम इस relationship को थोड़ा सा modify कर सकते हैं if we substitute the value of VD as, let's just say if we substitute the value of VD is equal to mu of E, so we have the relationship as I is equal to, और if we substitute this value in different way, ठीक है, अगर हम इसको substitute करते हैं तो we have the value of I is equal to NaE mu capital E। ठीक है, ये तो बस इसकी वेरिएशन आ गई। अगेन वी कैन ऑल्सो सब्स्टिट्यूट VD as, VD को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, EE tau over n। So when we substitute this value, we have I is equal to NaE square tau capital E over m। ठीक है, सो आपको ये सारे रिलेशनशिप्स आपको पता होने चाहिए। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर assertion and reason questions। Okay, next we will move to the Ohm's law। ठीक है, next topic is Ohm's law। ओके, ओम्स लॉ सिंपली हमें पता है क्या कि इसकी डेफिनेशन तो आपको पता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक है, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, हम इसमें ज्यादा जा नहीं रहे हैं, सो वी विल डायरेक्टली रिमेंबर द रिजल्ट, दैट इज V इज इक्वल टू IR। दिस इज देयर ओम्स लॉ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ये वैलिड कब होगा, व्हेन योर कंडीशंस रिमेन, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर सच दैट टेंपरेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एटसेट्रा आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। V इज इक्वल टू IR, एंड अगर हम इसके ग्राफ्स को प्लॉट करने की कोशिश करें, सो हम इसके ग्राफ्स को भी प्लॉट कर सकते हैं, बिकॉज इफ वी हैव टू प्लॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। ठीक है, अगर हमें V और I के बीच में रिलेशनशिप प्लॉट करना है, तो as we can see we will get a straight line, हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, देन वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो टॉपिक्स मुझे लगता है कि जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज की, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है, डोंट
time on all those topics. Okay, उन topics पर time waste करना I don't find that thing, you know, कि इतना feasible है हमारे लिए, हमारे पास उतना time है नहीं, so I'll उन्हीं topics पर time waste करेंगे, sorry time waste करना गलत word है, we will utilize our times for those topics which I feel like, you know, they are important for from the point of view of your examination. Okay, हमें उन topics पे ज़्यादा time devote करना है. So कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे in which we will devote more time and there will be some topics जिनको हम we will have some basic understanding, जिसमें हम लिखेंगे कुछ नहीं, जिसमें समझेंगे सब समझेंगे and we will try and solve those questions. Okay, so electrical resistance को किस तरह से define करते हैं? R is equal to V over I. ठीक है, एंड R को हम एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं in terms of specific resistance. R can also be defined in terms of specific resistance. ठीक है, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं कि हमें ये पता है कि R is equal to रो L over A. ओके, यहां पे रो क्या है? रो रिप्रेजेंट्स योर रेजिस्टिविटी, ठीक है, L रिप्रेजेंट्स योर लेंथ एंड A रिप्रेजेंट्स योर एरिया. ठीक है, एंड फर्दर यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग दैट रो इज इक्वल टू M over n e square tau. Rho over m n e square tau, where m is mass, n is number, e is your charge and tau is your relaxation time. ठीक है, तो इतनी सी बात आपके लिए क्लियर होगी. ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस थिंग. ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड वन थिंग टू यू दैट आई ओनली डिवोट टाइम टू दोस टॉपिक्स व्हिच आई फील लाइक, यू नो, आर इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड पर्सपेक्टिव. ओके, सो द चैप्टर टॉपिक्स लाइक ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ये चीजें आपको पता है. सो वी आर नॉट गोना डिवोट आवर टाइम टू दिस टॉपिक. जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ यार ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वी विल डिवोट आवर टाइम टू, बिकॉज वी हैव टू यूज आवर टाइम वेरी जुडिशियसली. ठीक है, हमें उसको बहुत ध्यान से यूज करना है. वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम्स. ओके, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए. Then moving on that note, see, when we're talking about resistivity, so rho is equal to m over n is equal to rho tau, where rho represents your resistivity, m is your mass, n is your number and e is your charge and tau is your relaxation time. Okay, remember when we talk about this relationship, we see that rho is proportional to 1 over n and rho is proportional to 1 over tau. ठीक है, so we will devote some time to understand what does this mean, what does the rho proportionality of rho with n means. ठीक है, इस बात को समझने के लिए let's just try and understand this thing, this relationship. Okay, so when we look at this relationship which says that rho is inversely proportional to n, rho is inversely proportional to n, so what does this mean? This means that rho is inversely proportional to number of free electrons per unit volume, number of free electrons per unit volume. Remember one thing, that n represents the number of free electrons per unit volume. इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, क्या n represents the number of free electrons per unit volume. ठीक है, this implies that since n depends on nature of conductor, nature of material, or rather I should say the nature of material or a conductor, this implies resistivity depends on nature of material. Please make sure you remember this point. ठीक है, that rho depends on nature of material. ये चीज आपको ये बता रही है. ठीक है, again let's just move to the next point and let's just try and understand what does the proportionality rho proportional to 1 by tau means. So this means that rho is proportional to 1 by tau. This implies that rho depends on, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम, सॉरी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. बिकॉज इफ योर टेम्परेचर इज हाई, tau decreases, and when tau decreases resistivity will increase, and when resistivity will increase your resistance will increase, and this is the reason why when we increase the temperature the resistivity, or rather we should say that the resistance of conductors goes on increasing. Why this happens? This happens because when we increase the temperature, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, the collisions between the free electrons will increase.
Now when the collision between the free electrons will increase, that means that relaxation time will decrease. ठीक है, again let me repeat myself. So when we increase the temperature, when temperature increases, this implies tau decreases, because tau represents the time between the collision. Tau decrease करेगा, and when tau decreases your rho increases, and when rho increases your r increases for conductors. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है. बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स व्हाट हैपेंस, सेमीकंडक्टर्स के केसेस में होता तो यही है, बट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस टू सच एन एक्सटेंट दैट इट ओवरटेक्स द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ड्यू टू डिक्रीज इन टाउ. उसका नंबर इतना बढ़ जाता है, एंड एज ऑफ ड्यू टू दिस पॉइंट, ड्यू टू दिस इफेक्ट, this conductivity of semiconductors increases with increase in temperature. Again let me repeat myself. In case of semiconductors होता क्या है, again क्योंकि they have some free electrons with them, तो उसकी वजह से होता क्या है कि वहां पे क्या होता है कि with increase in temperature collisions तो हो रहे हैं, बट होता क्या है कि with increase in temperature more and more free electrons are being produced, क्योंकि बॉन्ड टूटते हैं, and when bonds break free electrons are released. अब वो जो increase होता है in case of semiconductor, the increase in number of electrons वो बहुत ज्यादा होता है, and that overshadows the effect of decrease in resistance due to tau. ठीक है, इस वजह से क्या होता है in case of semiconductors, आप में क्या होता है, जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है, बट रेजिस्टिविटी क्या करती है, वो डिक्रीज करती है. ठीक है, नाउ I hope इतना सा आपको समझ आ चुका होगा. Now let's just move to the next topic, that is your current density, conductance and electrical conductivity. ठीक है. Now when we talk about current density, please make sure आपको ये definitions पता हो and you remember these relationships. Okay, then when we talk about current density, we usually denote this by symbol J. We denote by this symbol J, and J is equal to I over A, and J is equal to I over A. ठीक है, and remember one more thing, that I is equal to J vector dot A vector. I is equal to J vector dot A vector, and remember that J is your vector quantity. ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. एंड डायरेक्शन क्या होती है इसकी, इट्स डायरेक्शन इज along the motion of positive charge. Motion of positive charge. आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, इसकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए. एंड फर्दर वी नो दैट द कंडक्टेंस denoted by G is equal to 1 by R, and conductivity which is denoted by symbol sigma is equal to 1 by rho. इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है. एंड फर्दर रिमेंबर वन मोर थिंग, there's another relationship for Ohm's law. Ohm's law के लिए आपके पास एक relationship और निकल के आता है, which is also known as the vector form of Ohm's law, or rather we can say that there's another name for that, that is microscopic form of Ohm's law. ठीक है, so Ohm's law, इसकी जो वेक्टर फॉर्म है, Ohm's law, vector form of Ohm's law is given as J vector is equal to sigma of E vector, and it is also known as your microscopic Ohm's law. ठीक है, तो Ohm's law को आप एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हो, दैट इज J vector is equal to sigma of E vector. ठीक है, फर्दर there is another relationship between electrical resistivity and electron mobility, and that is rho is equal to 1 over Ne mu. ठीक है, see you don't have a different way. ठीक है, आपके पास कोई और तरीका नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज. ओके, यू कैन नॉट से दैट यू कैन आप तुक्का मार के आ जाएंगे पेपर पे, यू कैन जस्ट गेस द आंसर्स. ओके, बिकॉज in order to guess the answers आपको दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ता है. एलिमिनेशन ऑफ टू ऑप्शंस इज वेरी crucial if you have to bluff in the examinations. Okay, because if you have to bluff out of 4 options, आपको होता है कि the probability of success is 25%, but the moment you eliminate 2 options,
the moment you are able to eliminate two options, the probability increases to 50%. अब आपके पास 50% probability है कि आपका आंसर ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, and I will always take that 50% probability. ठीक है, अगर आपको पता है कि दो ऑप्शंस आपके गलत हैं, that means अब आपके पास 50% probability है आपको आंसर सही करने की, because now you will be only left with two options, because if you are sure कि ये दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट 50% प्रोबेबिलिटी, अगर आपको 50% प्रोबेबिलिटी तक पहुंचना है, देयर इज नो वे आउट, आपको फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे, एंड देन यू हैव टू रिलेट दोस, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड लर्न हाउ यू कैन रिलेट दोस फॉर्मूलाज टू योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. आपको तब वो चीजें समझनी पड़ेंगी. यू डोंट हैव एनी वे आउट. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ next is effect of temperature on resistance. Effect of temperature on resistance, and a question was asked in your previous year examinations from this topic, so I would put this topic in PYQ category. Okay, so remember one thing, there's a simple relationship between the temperature and resistance, that is R of T is equal to R naught 1 plus alpha T. ठीक है, 1 plus alpha T, and where is alpha is nothing but coefficient of resistance. Alpha is known as your coefficient of resistance. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब यहाँ पे let's just try and make something important, try and to learn something very important. So remember, if alpha is negative, if alpha is negative, what does this mean? अगर आपका alpha negative है, इस बात का मतलब ये है that resistance will decrease when temperature increases. If alpha is positive, this implies resistance will increase when temperature increases, and ये condition, these conditions are satisfied for, this condition will be satisfied for your insulators and semiconductors, for insulators and semiconductors, while the second relationship, this condition is satisfied for conductors, simply conductors. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट ट्राई वन मोर रिलेशनशिप. ये चीज आपको समझना पड़ेगा. नंबर 1, if alpha is the temperature coefficient of a conductor at 0 degree Celsius, and remember this question was your PYQ, इसके बेस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया था. Simple numerical, you just had to simply substitute the values to calculate the value of alpha. ठीक है, and if R1 and R2 are resistances at T1 and T2, then remember, then alpha is equal to R2 minus R1 over R1 T2 minus R2 T1. Please remember this relationship. ठीक है, okay. Again, there's one more important relationship, that is the value of alpha is different at different temperatures. At different temperatures. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. Then the temperature coefficient of resistance averaged over T1 degree Celsius to T2 degree Celsius, that is given by alpha is equal to R2 minus R1 over R1 T2 minus T1. ठीक है,
ये दो रिलेशनशिप्स हैं विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, कि इनमें बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है एंड आपको वो चीज़ याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज दीज आर समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, देयर इज नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू विद दिस थिंग्स, ये रिलेशंस आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, now let's just move to some of the one of the most important topics, that is your non-ohmic devices, non-ohmic devices। ठीक है, see what are the ohmic devices, आपको पहले समझना पड़ेगा। the ohmic devices are दो devices which follow the relationship of V is equal to IR, जो आपके इस relationship को follow करते हैं, those devices are known as your ohmic devices। ठीक है, but there are some devices which don't follow the Ohm's law and those devices are known as non-ohmic devices। ठीक है, सो जो आपके ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, दोज डिवाइसेस आर योर ohmic devices and devices which don't follow your Ohm's law, those devices are known as non-ohmic devices। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, so please listen to me very carefully, this is very interesting। okay, so let me write important besides this along this side। ठीक है, so let's just remember one thing। okay, this is very important, the relation V over I is equal to R, remember this thing, this relationship is valid for both ohmic and non-ohmic devices, ये दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ आता है, बट हियर वेयर R is constant, remember this is the difference, where R is constant for ohmic devices and R is not constant for non-ohmic devices, please remember this thing। ठीक है, दैट इज आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, द रिलेशनशिप दिस रिलेशनशिप इज वैलिड ओनली फॉर ओमिक डिवाइसेस, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज वैलिड फॉर बोथ ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, सो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, सो अब आपसे पास क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस आर नोन एज ओमिक डिवाइसेस, और अदर वी शुड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस आर नोन एज नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, सो रिमेंबर only those devices are known as non-ohmic devices, only those devices are known as non-ohmic devices where number one, relationship between V and I is not linear, this is the first point। secondly, those devices where the relationship between V and I depends on sine of V, or these are those devices where relationship between V and I is not unique। We can understand these 3 points with the help of a diagram, or rather we can say that we can understand this relationship with the help of graphs। देखिए, first relationship says, the first point says that the relationship between V and I is not linear। Now if a device is an ohmic device, if a device is ohmic device, then remember this thing, that this kind of relationship should be followed, then this is the relationship they should follow, because here V and I, if this is your V and this is I, okay, so this kind of relationship we should be getting for ohmic devices, but in case of non-ohmic devices the relationship between them is non-linear, so this is the relation which you will be getting, they will follow this relationship for some point and after that they will vary, they won't follow this relationship। so this is for ohmic devices, this is for your ohmic, this relationship is for your ohmic devices and this is for your non-ohmic devices। okay, this is how you will explain the point number 1।
So again, in order to understand the point number 2, let's just again plot the graph. ठीक है, अब आपको ना इसके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए. ठीक है, you have to remember these examples. Okay, so in the second case, let's just again plot the graph to understand the second point. ठीक है, the second point is where the value of v and I, relationship between v and I depends upon the sign of v and I, sign of v. Okay, so if this is the point, this is what they are talking about. Okay, हम सबको डायोड्स पता ही है क्या होते हैं. ठीक है, so in case of diodes, the value depends on, this is how the value varies. ठीक है, this is how your value varies. ठीक है, so this explains your point number 2. This explains your point number 2. And third is when v and I are not unique. Unique नहीं है, इस बात का मतलब क्या है, that same value can have, same value of v can have two currents. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं the same current will have two values of v. हम ये भी कह सकते हैं, जैसे this kind of relationship. ठीक है, तो this is the relationship where the same value of v will be for two types of currents. ठीक है, सो ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पे आपका ओमिक रिलेशनशिप्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस डिवाइसेस. ठीक है, एंड फाइनली now we came to the last topic of today's session, that is resistance in series and in parallel. ठीक है, so in series relationship we know that the equivalent resistance is given by R1 plus R2 plus R3 up to Rn, and in parallel circuit we know that Rp is given by 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by Rn. This is something which we know. ठीक है, but remember one more thing. There's something more which you should learn about the series circuit and the parallel circuit. The first thing which you should remember that in the series circuit, number one, the current is same in every resistor. The current is same in every resistor. ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए. ये चीजें अगर आपको पता नहीं है, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. यू वोंट बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर सर्किट डायग्राम. ठीक है, सेकेंडली the amount of current in circuit is independent of relative position of various resistors. ठीक है, एंड फाइनली आपको यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी, that voltage across each resistor, the voltage across each resistor is directly proportional to resistance of that resistor. ठीक है, अब आपको ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ. रिमेंबर वन मोर थिंग, दीज पॉइंट्स, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ दीज पॉइंट्स, आपके लिए सर्किट डायग्राम्स को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है, लेट मी रिपीट माई सेल्फ. इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है, दैट इज द करंट इज द सेम इन एवरी रेजिस्टर ऑन ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आई एम गोना राइट अगेन. ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी. इफ यू हैव नॉलेज ऑफ दीज पॉइंट्स, you will be easily, it will be very easy for you to solve the circuit diagrams. Okay, अगर आपको ये पॉइंट्स पता है, and there are chances कि आप बिना पेन उठाए भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ. ठीक है, so you have to be very careful and you should remember this point, because again I am repeating myself that these points will help you to solve your numerical problems, your circuit diagrams. ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी. ठीक है, and one of the most crucial points here is that connecting circuits in resistance, connecting resistors in series is like
increasing the length of conductor. So when the length of the conductor क्या करते हैं, increase करते हैं, because R is equal to rho L over A. When L increases, the resistance increases. So increase connecting the circuits in a series circuit, resistors in series is like increasing the length of the conductor. Similarly, for parallel circuit, when we talk about the parallel circuit, हमें पता है यहाँ पे क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स इज सेम प्रोवाइडेड दे आर इन पैरेलल सर्किट. ऑब्वियसली ये बात आपको समझने से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है. करंट इन ईच रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस of that resistor. ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है. ठीक है. So these are some points which you should remember regarding your series circuit and your parallel circuit. And I hope इसके साथ आपका आज का लेक्चर आज के लिए कवर हो जाता है. And tomorrow we will start with the next part of this topic, this chapter. And I hope, I'm really hoping this thing कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है. सो इन केस यू फाइंड समथिंग प्रॉब्लमेटिक, अगर आपको लगता है कुछ चीज आपको दिक्कत दे रही है, सो प्लीज मेक श्योर यू राइट दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू. एंड आई एम होपिंग कि आप मुझे कोई लाइक इफ यू कैन प्रोवाइड मी सम काइंड ऑफ फीडबैक कि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, तो अगर आपको कुछ हेल्प मिली है, फिर पॉजिटिव फीडबैक अगर आप मुझे देंगे या नेगेटिव फीडबैक अगर आप मुझे देंगे कि द थिंग्स व्हिच आई शुड इंप्रूव, देन आई विल बी वेरी हेल्पफुल. दैट थिंग विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. ठीक है. एंड ऑब्वियसली अगर वो मेरे लिए हेल्पफुल तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी, बिकॉज आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ. ऑन दैट नोट आज का लेक्चर हम आज यहीं पे खत्म करते हैं. एंड आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. ऑन दैट नोट आई शुड से गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू टुमारो.